Going to start with the new topic, that is normal labor. Most demanding, most important topic for an MBBS student. ठीक है, labor basically होता क्या है? As you can see in the definition, the labor is a series of the event. It is a series of event that take place in the genital organs in an effort to expel the viable product of the conception, that is fetus, placenta and the membranes. ठीक है, वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसेप्शन क्या क्या होते हैं? फीटस हो गया, प्लासेंटा हो गया और जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, ये द सीरीज ऑफ द इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन टू इन एन एफर्ट टू एक्सपेल ऑल दीज थिंग्स इज बेसिकली योर लेबर. ये सीरीज ऑफ इवेंट्स को ही हम बोलते हैं. ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट टू take place in the genital organ in an effort to expel the viable product of the conception, which include fetus, placenta and the membrane out of the womb through the vagina into the outer world is called as labor. ठीक है, इसे हम बेसिकली लेबर बोलते हैं. ठीक है, इट में अकर पीरियड टू 37 कंप्लीटेड वीक, 37 वीक से पहले भी हो सकता है. व्हेन इट इज कॉल्ड एज प्री टर्म लेबर. अगर वो 37 वीक से पहले हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज प्री टर्म लेबर. लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. लेबर में बेसिकली रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं विथ एफेसमेंट एंड द डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. एफेसमेंट होगा, सर्विक्स डायलेटेड हो जाएगी एंड फीटल डिसेंट होने लगेगी. अब part nutrient is a patient part nutrient is a patient in the labor. उस पेशेंट को बोलते हैं जो लेबर में होती है. एंड द पार्ट न्यूट्रिशन इज द process of giving birth. ठीक है, part nutrient is a patient in the labor and part nutrition is the process of giving the birth. Delivery is the expulsion or the extraction of the viable fetus out of the womb. It is not synonymous with the labor. ठीक है, delivery can take place without labor, as in the elective cesarean section it is delivery. Delivery may be vaginal, it may be either spontaneous or aided, it may be abdominal. ठीक है, normal labor that is यूटोशिया जिसे हम बोलते हैं, normal labor को यूटोशिया भी बोलते हैं. labor is called normal if it fulfills the following criteria. normal labor तब हम कहेंगे जब वो ये 5 क्राइटेरिया मीट करेगा. दैट इज स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एट द टर्म पूरा होने पे, दैट इज योर 37 वीक्स. ठीक है, स्पॉन्टेनियस उसका ऑनसेट हो जाए, अपने आप स्टार्ट हो जाए एट द टर्म विद द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. बच्चे का जो फीटस है, फीटस का प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होना चाहिए. ठीक है, विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, कोई प्रोलॉन्गेशन नहीं है उसमें, ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब डिले नहीं हो रही है फालतू में. ठीक है, नेचुरल टर्मिनेशन है विथ मिनिमल एड. नेचुरल टर्मिनेशन है विथ मिनिमल एड विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर और द बेबी. एबनॉर्मल लेबर या फिर डिस्टोशिया जिसे बोलते हैं, यूटोशिया इज नॉर्मल लेबर. एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोशिया बोलते हैं. एबनॉर्मल लेबर एनी डेविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लेबर. दस द लेबर इन केस विद द प्रेजेंटेशन अदर देन द वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स के अलावा कोई ब्रीच हो रहा है तो दिस इज एबनॉर्मल लेबर. ठीक है, presentation other than the vertex or having any some complication even with the vertex presentation. पर vertex presentation है लेकिन कोई complication है affecting the course of जिसकी वजह से course of the labor affect हो रहा है, और modifying the nature of the termination जिसकी वजह से nature of termination modify करना पड़ रहा है, cesarean में जाना पड़ रहा है, या फिर adversely affecting the maternal and the fetal prognosis is called as abnormal labor. Date of the onset of the labor, it is very much unpredictable. labor की जो onset होती है, it is unpredictable to foretell that precisely the exact date of the onset of the labor. It is not only varies from case to case, वो case to case vary करती है, but even in the different pregnancy of the same individual labor के courses vary कर सकता है. Calculation based on the Naegele's formula can only give a rough guide. Based on the formula, the labor starts for approximately expected date in 4% and 1 week on either side in 50%, and 2 weeks earlier and 1 week later in the 80%, and 42 weeks in the 10%, and 43 weeks plus
इन 4%। तो बेसिकली जो बेस्ड ऑन द फार्मूला, निगलीस फार्मूला हम यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए, दैट इज़ 9 मंथ प्लस 7 days। ठीक है, जब ऑन फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब हम इसको ऐड करके एक ईडीडी निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं एक्सपेक्टेड डेट पे ही लेबर 4% केसेस में सिर्फ निकल आता है। ठीक है, 4% केसेस में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पे लेबर स्टार्ट होगा। 1 week ऑन ईदर साइड इन 50% केसेस, 1 week पहले भी हो सकती है, 1 week बाद भी हो सकता है। 50% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। 2 weeks अर्लियर एंड 1 week लेटर इन 80%, ज़्यादा 2 week पहले और 1 week लेटर इन 80% केसेस। 80% केसेस में इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एंड एट 42 weeks इन 10% केसेस एंड 43 weeks इन द 4% केसेस। द कॉजेज ऑफ द ऑनसेट ऑफ द लेबर, अगर हम बात करें, द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द ह्यूमन लेबर इज स्टिल ऑब्सक्यूर। एंडोक्राइन हो सकता है, बायोकेमिकल हो सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेच पाथवे की वजह से हो सकता है, एज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल एक्सपेरिमेंट। हाउएवर पुट फोर्थ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, कुछ हाइपोथेसिस प्रेजेंट करी गई हैं टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ द लेबर। लेबर स्टार्ट क्यों होता है उसके लिए कुछ हाइपोथेसिस यहाँ पे हमें दी गई हैं इन्होंने। दैट इज यूट्राइन डिस्टेंशन की वजह से हो सकता है, दैट इज स्ट्रेचिंग इफेक्ट ऑन द मायोकार्डियम, जो हमारा बेसिकली यूट्रस होता है, यूट्रस की मायोकार्डियल वॉल होती हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रेचिंग की वजह से वो स्ट्रेच हो रही होंगी। ठीक है, उसकी वजह से ड्यू टू द ग्रोइंग फीटस, जो फीटस अंदर ग्रोथ कर रहा है वो बेसिकली इन वॉल्स को स्ट्रेच करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग इफेक्ट आएगा मायोमेट्रियम पे। ठीक है, एंड द लिक्वर एमएनआई कैन एक्सप्लेन द ऑनसेट ऑफ द लेबर एटलीस्ट इन द ट्विंस एंड द पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ट्विंस और पॉलीहाइड्रोएमनियोस में तो समझ में आता है। द यूट्राइन स्ट्रेच इंक्रीजेस द गैप जंक्शन प्रोटीन्स रिसेप्टर फॉर द ऑक्सीटोसिन एंड द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है, ये इन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दी कि बेसिकली यूट्राइन स्ट्रेच जब होगा, जिसकी वजह से गैप जंक्शन बेसिकली जो होते हैं वो इंक्रीज करेंगे प्रोटीन्स के, रिसेप्टर फॉर द ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएंगे एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज इन्होंने दी है, दैट इज फीटो प्लासेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैस्केड ऑफ द इवेंट एक्टिवेट फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस। तो बेसिकली कई इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से फीटस का जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एड्रीनल का एक्सेस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से prior to the onset of the labor increase in the cortisol releasing हार्मोन, जिसकी वजह से लेबर स्टार्ट होने से पहले सीआरएच का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, फीटस से तुम्हारा सीआरएच ज़्यादा बढ़ेगा, सीआरएच जब बढ़ेगा कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज, रिलीज ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच बढ़ेगा, एसीटीएच बढ़ेगा तो फीटल एड्रीनल एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज कॉर्टिसोल सिक्रीशन बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल सिक्रीशन बढ़ेगा तो एक्सेलरेटेड प्रोडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन और एस्ट्रोजन बहुत सारा बनने लगेगा फ्रॉम द प्लासेंटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये इवेंट एक होने लगता है। ठीक है, अब अगर ईस्ट्रोजन तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। अब ईस्ट्रोजन अगर तुम्हारा फीटस की वजह से ईस्ट्रोजन बढ़ गया तो वो क्या कराएगा, मैटरनल से ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, मैटरनल पिट्यूटरी से निकलेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ द मायोमेट्रियल रिसेप्टर फॉर द ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वो क्या करेगा, वो प्रमोट कर देगा सिंथेसिस ऑफ द मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स की सिंथेसिस बढ़ा देगा फॉर द ऑक्सीटोसिन बाई 100 to 200 fold। ठीक है, prostaglandin and the increase in the gap junction in the myometrial cell accelerate the lysosomal disintegration in the decidual and the amnion cell resulting in the increased prostaglandin PGF2 alpha synthesis। ठीक है, ये तुम्हारा पहला काम तो कर रहा है, तुम्हारा मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन बढ़ा रहा है। दूसरा काम एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ये मायोमेट्रियल जो तुम्हारे रिसेप्टर्स हैं उनको प्रमोट कर रहा है, वहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बढ़ रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ रहा है, गैप जंक्शन खुल रहा है मायोमेट्रियल सेल में। ठीक है, जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, एक्सेलरेट करता है वो लाइसोसोमल डिसइंटीग्रेशन इन द डेसिडुआ। जो डेसिडुआ होती है आपकी, जो यूट्रस का डेसिडुआ होता है, ठीक है, वहाँ पे लाइसोसोमल डिसइंटीग्रेशन कराएगा, लाइसोसोम जो है वो डिसइंटीग्रेट करेंगे, उनसे जो है
और एम्नियन सेल्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द लाइसोसोम डिसइंटीग्रेशन होगा तो बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बढ़ जाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 वगैरह ये सारे निकलेंगे उससे, ठीक है। तीसरा फिर देन चौथा है तुम्हारा स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ द मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, ठीक है, दैट इज एक्टिनोसिन एक्टोमायोसिन थ्रू द CAMP इंक्रीजेज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मायोमेट्रियल सेल मेम्ब्रेन, मायोमेट्रियल सेल मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी बढ़ा देता है। तो ये 5 एक्शंस तुम्हारे ईस्ट्रोजन शो कर रहा है। देन फर्दर ये तुम्हारा प्रोजेस्ट्रॉन जो बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या होता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है बेसिकली वो इंक्रीज करता है फीटल प्रोडक्शन ऑफ द डाईहाइड्रो एपीएंडेस्ट्रॉन सल्फेट DHES and cortisol inhibit the conversion of the fetal pregnenolone to the progesterone, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल देयरफॉर फॉल्स बिफोर द लेबर। तो बेसिकली इसमें प्रोजेस्ट्रॉन जब तुम्हारा पिक्चर में आता है तो वो इंक्रीज करता है फीटल प्रोडक्शन ऑफ द डीहाइड्रो एपीएंडेस्ट्रॉन सल्फेट, ठीक है, DHES बढ़ेगा एंड कार्टिसोल जो कि इनहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ द फीटल प्रेग्नेनोलोन टू द प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स जो होते हैं देयरफॉर फॉल कर जाते हैं बिफोर लेबर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जब तुम्हारा ये सारा कॉर्टिसोल का ये सारा मैकेनिज्म हो रहा होगा, एट द सेम टाइम जो प्रोजेस्ट्रॉन है उसकी कमी हो जाएगी, मतलब प्रोजेस्ट्रॉन रिलैक्सिंग होता है ना यूट्रस के लिए, कॉन्ट्रैक्शन कम कराता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल फॉल करना पड़ेगा बिफोर लेबर स्टार्ट। तो प्रोजेस्ट्रॉन कम कैसे होगा, DHES और कॉर्टिसोल पिक्चर में आएगा। कॉर्टिसोल जो है वो प्रेग्नेनोलोन को प्रोजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रॉन तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक है। इट इज द अल्टरेशन इन द एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन रेशियो rather the fall in the absolute concentration of the प्रोजेस्ट्रॉन का concentration फॉल कर जाता है, which is linked with the prostaglandin synthesis, ठीक है। the prostaglandin they are important factor which initiate and maintain the labor। prostaglandin important factor होते हैं, ये initiate करते हैं और maintain करके रखते हैं लेबर को। the major site for the synthesis of the prostaglandin are amnion, chorion, amnion हो गया, chorion हो गया, ये सब जो है मेजर साइट होती हैं सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। डेसिडुअल सेल्स हो गए एंड मायोमेट्रियम हो गए, यहाँ पे सिंथेसिस होती है प्रोस्टाग्लैंडिन के। सिंथेसिस इज ट्रिगर्ड बाय द राइज इन द ईस्ट्रोजन लेवल, ईस्ट्रोजन लेवल राइज होगा उसकी वजह से तुम्हारा प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बढ़ेगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेगा, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होगी इन द लेट प्रेगनेंसी उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बढ़ती है, इंक्रीज इन द साइटोकाइंस दैट इज इंटरल्यूकिन 1 and 6 एंड TNF अल्फा वगैरह की वजह से बढ़ता है, इन्फेक्शन हो गया कोई या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड सेपरेशन और द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज बढ़ जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं एनहेंस करते हैं गैप जंक्शन को, दैट इंट्रामेम्ब्रेनस गैप बिटवीन द टू सेल्स थ्रू विच द स्टिमुलस फ्लोस फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लेते हैं इनिशिएशन ऑफ द पार्ट न्यूट्रिशन कैसे होता है। बेसिकली पार्ट न्यूट्रिशन कास्केड होता है, दैट इज फीटस होता है, फीटस में तुम्हारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से तुम्हारा कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो बेसिकली सिक्रीट होता है, फीटल पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, फीटल पिट्यूटरी तुम्हारा ACTH सिक्रीट करेगी, ACTH दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिव, फीटल एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट होंगे तो फीटल एड्रीनल ग्लैंड तुम्हारा कॉर्टिसोल सिक्रीट करेंगे, ठीक है, और वो लीवर को एक्टिवेट कराते हैं जिसकी वजह से DHES बनता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन तुम्हारा बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तुम्हारा वो तुम्हारा प्लासेंटा पे एक्ट करेगा, कॉर्टिसोल प्लासेंटा पे एक्ट करेगा जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 168 बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन की कमी हो रही है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 एंड PGF2 अल्फा ये दोनों बढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, ठीक है। और प्लासेंटा से जो कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन है वो बेसिकली वो भी बढ़ाता है फीटल पिट्यूटरी के एक्शन को, ठीक है। फिर आखिरी में लास्ट में आता है मदर का, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है मदर का, वहाँ पे तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस बढ़ जाती है, ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस बढ़ेगी तो मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, देन गैप जंक्शन बढ़ जाएंगे, डेसिडुअल PGF2 अल्फा बढ़ेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर बढ़ जाएंगे एंड द नंबर एंड द सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, यूट्राइन
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से यूट्रस पे लेबर स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द बेसिकली लेबर कास्केड। द पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द लेबर अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है, जो एक्स फैक्टर होता है एक्टिवेशन ऑफ द फीटल हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, जब वो एक्टिवेट हुई वो कॉर्टिसोल रिलीज कराएगा। कॉर्टिसोल प्लासेंटा के थ्रू जाके प्रोजेस्टेरोन को कम कराएगा, ईस्ट्रोजन को बढ़ाएगा। ठीक है, मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एस्ट्रोजन एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है। ऑक्सीटोसिन तुम्हारा प्लासेंटा, एमनियन, कोराइन, रेसिडुआ इन सब पे एक्ट करके ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है। PGE2 अल्फा, PGE2 बढ़ता है, PGF2 अल्फा बढ़ता है, तुम्हारा कुछ प्रोटीन्स बढ़ते हैं। ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली आती है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ द मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम हो जाता है। ठीक है, एंड देन biochemical mechanism involved in the synthesis of the prostaglandin, as you can see, as we have seen in this. And then we have phospholipase A2 in the lysosome of the fetal membrane near the term। जो phospholipase A2 होता है वो लाइजोसोम में होता है फीटल मेम्ब्रेन्स की। ठीक है, वो बेसिकली जब टर्म आता है तो स्टेरिफाइड एरेक्डोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ द फ्री, then it lead to the formation of free एरेक्डोनिक एसिड, जिसकी वजह से फ्री एरेक्डोनिक एसिड की सिंथेसिस हो जाती है। फाइनली सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन होता है थ्रू द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस। प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट इज E2 एंड F2 अल्फा, ये दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट डिफ्यूजेस इन द मायोमेट्रियम, वो मायोमेट्रियम में डिफ्यूज कर जाते हैं, एंड दे एक्ट डायरेक्टली एज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो डायरेक्टली एट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट करने लगते हैं, इनहिबिट करते हैं इंट्रासेलुलर CAMP जनरेशन को, इंक्रीज करते हैं लोकल फ्री कैल्शियम आयंस को। लोकल फ्री कैल्शियम आयंस वहाँ पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। वंस एरेक्डोनिक एसिड cascade is initiated, prostaglandin themselves will activate lysosomal enzyme system. The prostaglandin synthesis reaches a peak during the birth of the placenta, probably contributing to its expulsion and to the control of the postpartum hemorrhage। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हो गया, एंड द मायोमेट्रियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट इन द फंडस कंपेयर टू द लोअर सेगमेंट ऑफ द सर्विक्स एंड द यूट्रस। तो बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन, मायोमेट्रियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स के बारे में अगर कुछ बात करते हैं तो जो ये जैसे हमारा ये यूट्रस का पार्ट होता है, ठीक है, तो दिस इज द फंडस पोर्शन। ठीक है, ठीक, जो फंडस का पोर्शन होता है यहाँ पे आपका ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं फंडस पे एज कम्पेयर टू द लोअर सेगमेंट एंड द सर्विक्स। तो ये आपका यहाँ पे ये पोर्शन होता है नीचे, ये सर्विक्स है। ठीक है, एंड ये हमारी बॉडी रहती है यूट्रस की। ठीक है, ये सर्वाइक्स, ये जितना लोअर पोर्शन है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर थोड़े कम होते हैं और फंडस पे थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, द रिसेप्टर नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रीचिंग द मैक्सिमम ड्यूरिंग द लेबर। प्रेगनेंसी के टाइम पे रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं और लेबर के टाइम पे मैक्सिमम होते हैं। रिसेप्टर नंबर्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज होता है और वो मैक्सिमम हो जाता है ड्यूरिंग द लेबर। रिसेप्टर की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज करती है ड्यूरिंग द लेबर। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2 अल्फा फ्रॉम द एमनियन एंड द डेसिडुआ। द वेजाइनल एग्जामिनेशन and the amniotomy, stretching of the lower genital tract causes rise in the maternal plasma oxytocin level, that is this is called as Ferguson reflex। Ferguson reflex क्या होता है, जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर एमनियोटमी करते हैं, ठीक है, दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट। लोअर जेनिटल ट्रैक्ट जब बेसिकली तुम्हारा स्ट्रेच होता है, ठीक है, इन दैट केस इट कॉजेज राइज इन द मैटरनल प्लाज्मा ऑक्सीटोसिन लेवल। मैटरनल प्लाज्मा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है, इट इज कॉल्ड एज फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। ठीक है, द फीटल प्लाज्मा ऑक्सीटोसिन लेवल इज फाउंड इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस लेबर compared to that of the mother. Its role in the human labor is not yet established. The neurological factor, although labor may start in denervated uterus, the labor may also be initiated through the nerve pathway, that is both the alpha and the beta adrenergic receptors are present in the myometrium. Estrogen causing the alpha receptor and the progesterone
द बीटा रिसेप्टर टू फंक्शन प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, जो एस्ट्रोजन होते हैं वो बेसिकली अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन बीटा रिसेप्टर पे प्रीडोमिनेंटली एक्ट करते हैं। ठीक है, एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल response is initiated through the alpha receptor of the prostaglandin nerve fibers। ठीक है, जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स। तो ईस्ट्रोजन तुम्हारा अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और प्रोजेस्टेरोन जो है बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। ठीक है, इन एंड अराउंड द सर्विक्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट द ऑनसेट ऑफ द लेबर अकर फॉलोइंग द स्ट्रिपिंग। तभी ऑब्जर्वेशन पे अगर देखते हैं कि जो ऑनसेट ऑफ द लेबर होता है फॉलोइंग द स्ट्रिपिंग और लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन्स को नीचे से लो रप्चर कर देते हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है उनको नीचे से अगर रप्चर कर देते हैं तो ऑनसेट ऑफ द लेबर स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू स्ट्रिपिंग, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने की वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल system of the myometrium अगर देखें तो basic elements involved in the uterine contractile systems are actin, myosin and adenosine triphosphate ATP and the enzyme myosin light chain kinase MLCK and calcium. The structural unit of the myometrial cell is myofibril, which contains protein that is actin and myosin. The interaction of the myosin and the actin is essential for the muscle contraction. The key process for the actin and myosin interaction is myosin light chain kinase phosphorylation. The reaction is controlled by the myosin light chain kinase. Oxytocin acts on the myometrial receptor. Oxytocin जो है basically तुम्हारा myometrial receptors पे act करता है and activate करता है phospholipase C को, which increases intracellular calcium level, जिसकी वजह से intracellular calcium level बढ़ जाता है। Calcium is essential for the activation of the MLCK myosin light chain kinase and binds to kinase as calmodulin calcium complex. Intracellular calcium levels are regulated by the two general mechanisms, that is influx across the cell membrane and release from the intercellular storage site. The calcium is stored within the cells in the sarcoplasmic reticulum and in the mitochondria. The progesterone and the CAMP promotes the calcium storage at these sites. PGF2 alpha, E2 and the oxytocin on the other hand stimulates its release। ठीक है, वो बेसिकली उसकी रिलीज को बढ़ाते हैं। इंटरसेल्युलर कैल्शियम जो होता है बेसिकली कैलमोडिलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फोरिलेटेड मायोसिन प्लस एक्टिन बनाता है, फिर मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। डिक्रीज इन द इंटरसेल्युलर कैल्शियम और इट्स शिफ्ट टू द स्टोरेज साइट, dephosphorylation of the myosin light chain kinase light chain and inactivation of the myosin light chain kinase, myometrial relaxation होता है। Uterine muscles have two types of the adrenergic receptor, that is alpha receptor on which the stimulation produce a decrease in the cyclic AMP, that is adenosine monophosphate, and result in the contraction of the uterus, जिसकी वजह से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, बीटा रिसेप्टर जो होते हैं विच ऑन स्टिमुलेशन प्रोड्यूसेस राइज इन द साइक्लिक एएमपी एंड रिजल्ट इन द इनहिबिशन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर बीटा रिसेप्टर तुम्हारे स्टिमुलेट होते हैं वो साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट होते हैं, इनहिबिट करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। अल्फा रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, प्रोड्यूस डिक्रीज इन द साइक्लिक एएमपी को डिक्रीज करते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट डिक्रीज होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है इन द यूट्रस। ठीक है, फॉल्स पेन्स क्या होते हैं, तो अभी तक हम देख रहे थे लेबर पेन के बारे में, अब हम देख रहे हैं फॉल्स पेन होते क्या है। फॉल्स पेन बेसिकली superior labor, that is it is found more in the primary gravida में ज़्यादा ये मिलता है than in the parous women। it usually appears prior to the onset of the true labor start होने से पहले ये ज़्यादातर मिलता है by 1 or 2 weeks in the primary gravida and by a few days in multipara। and such pains are probably due to the stretching of the cervix and the lower uterine segment with consequent irritation of the neighboring ganglion। Pre-labor, that is synonyms, premonitory stage. The premonitory stage may begin 2 to 3 weeks before the onset of the true labor in the primary gravida and the few days before in the multipara। The features are inconsistent and may consist of the following, that is lightening a few days prior to the onset of the labor, especially in the primary gravida. The presenting part sinks into the true pelvis
Okay, lightning a few weeks period to the onset of the labor, especially in the primigravida, the presenting part sinks into the true pelvis. It is due to the active pulling up of the lower pole of the uterus around the presenting part. It signifies incorporation of the lower uterine segment into the wall of the uterus. ठीक है, ये जो लाइटनिंग का टाइम होता है, लाइटनिंग बेसिकली क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो ट्रू पेल्विस में जब डिसेंट हो जाती है, जैसे ये ट्रू पेल्विस है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है हेड ऑफ द फीटस है, वो जब यहाँ से पेल्विस के बाहर होने से तुम्हारा ट्रू पेल्विस में जब वो आ जाता है, ठीक है, इट इज ड्यू टू एक्टिव पुलिंग up of the lower pole of the uterus around the presenting part, which signifies the incorporation of the lower uterine segment into the wall of the uterus. This diminishes the fundal height, जिसकी वजह से फंडल हाइट डिमिनिश हो जाती है, ठीक है, इस टाइम पे फंडल हाइट डिक्रीज करती है, ठीक है, एंड हेंस मिनिमाइजेस द प्रेशर ऑन द डायफ्राम, डायफ्राम पे इसीलिए जो प्रेशर होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, इस टाइम पे कम हो जाता है, ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर. फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग बिफोर एंड आफ्टर लाइटनिंग. जब पहले था तो बच्चा यहाँ पे पुश दे रहा था डायफ्राम पे, ठीक है, अब ये जब प्रेजेंटिंग पार्ट डिक्रीज करता है तो ये डिसेंट होता है बच्चे का, ठीक है, इन दैट केस जो ब्रिम के नीचे आ जाता है ये, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड एज डिसेंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लाइटनिंग. जब डायफ्राम को स्पेस मिलता है जिसकी वजह से फीमेल अच्छे से सांस ले पाती है, ठीक है, डायफ्राम को एज यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पे डायफ्राम को पूरा स्पेस मिल चुका है, ये चीज खाली हो गई है, ठीक है. So, what will the mother experience? Mother experiences the sense of relief from the mechanical cardiorespiratory embarrassment. ठीक है, उसको सांस लेने में आसानी हो जाती है, जो पहले उसे डिफिकल्टी हो रही थी अब उसे इजी फील होता है. देयर मे बी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन और कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू द मैकेनिकल फैक्टर्स, प्रेशर बाय द इंगेज्ड प्रेजेंटिंग पार्ट. लेकिन अब इस टाइम पे आपको मिक्सचुरेशन एंड डिफिकेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं एज इंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है. इट इज़ अ वेलकम साइन एज इट रूल्स आउट द सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन. इसे हम वेलकम साइन भी बोलते हैं. वेलकम साइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मतलब है कोई भी पेशेंट में सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है. देन and the other conditions preventing the head from entering the pelvic inlet. आराम से हेड अंदर चला गया है, इसका मतलब कोई सीपीडी नहीं है इस केस में. दिस इज अ वेलकम साइन. देन द सर्वाइकल चेंजेस की बात करें तो सर्वाइकल चेंज अ फ्यू डेज पीरियड टू द ऑनसेट ऑफ द लेबर सर्विक्स बिकम राइप, ठीक है, तो कुछ दिन पहले ऑनसेट ऑफ द लेबर सर्विक्स राइप हो जाती है. राइप सर्विक्स कब बोलते हैं? सर्विक्स को राइप तब बोलते हैं जब वो सॉफ्ट होती है, 80% इफेस्ड होती है, दैट इज लेस देन 1.5 सेंटीमीटर इन द लेंथ, ठीक है, एंड एडमिट वन फिंगर इजिली, एक फिंगर आराम से इंसर्ट हो सकती है, एंड सर्वाइकल कैनाल डायलेटेड होती है, डायलेटेबल होती है, ठीक है. तो बेसिकली सर्वाइकल चेंजेस क्या है? ये बेसिक चार चीजें हैं. सर्विक्स को राइपन कब बोलोगे? सर्विक्स राइप हो गई है, दैट मीन्स पहली बात तो ये कि सर्विक्स सॉफ्ट होगी. दूसरी बात, सर्विक्स जो होगी वो 80% एफेस्ड होगी, दैट इज उसकी जो लेंथ होगी वो लेस देन 1.5 सेंटीमीटर होगी, और वो एक फिंगर को एडमिट कर रही है इजिली, एंड सर्वाइकल कैनाल जो है वो डायलेटेबल है, ठीक है. इसे बोलते हैं ये राइप सर्विक्स है, ठीक. इसके बाद अपीयरेंस ऑफ द फॉल्स पेन. देन वी टॉक अबाउट द ट्रू लेबर पेन. जो ट्रू लेबर पेन होते हैं, इट इज कैरेक्टर, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? दैट इज पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल. ट्रू लेबर पेन जब भी होगा तो वो पेनफुल होगा. पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, हर रेगुलर इंटरवल दर्द के साथ आ रहा है, रेगुलर इंटरवल्स पे है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ग्रेजुअली. जो फ्रीक्वेंसी है कॉन्ट्रैक्शन की वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है, ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन एक के बाद एक और
और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से आ रहा है, जल्दी इंक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली जल्दी जल्दी आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, पेनफुल है और जल्दी जल्दी हर हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जल्दी जल्दी आ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है कॉन्ट्रैक्शन की। इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज प्रोग्रेसिवली, और प्रोग्रेसिवली जो इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन है, मतलब जो आगे वाले कॉन्ट्रैक्शन जो लगातार आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो ड्यूरेशन भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, देर तक की कॉन्ट्रैक्शन रह रहा है। एसोसिएटेड विद शो के साथ एसोसिएटेड हो गया वो, ठीक है। प्रोग्रेसिव एफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, बच्चे का हेड दिखने लगेगा, शो है, ठीक है, या फिर ब्लीडिंग होगी, ठीक है। देन प्रोग्रेसिव एफेसमेंट है, प्रोग्रेसिव एफेसमेंट और सर्विक्स डायलिटेशन होगा, ठीक है। देन डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट कर रहा है उसके साथ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ 4 वाटर्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ 4 वाटर्स एंड नॉट रिलीव्ड बाय द एनिमा और सेडेटिव, किसी भी एनिमा और सेडेटिव से वो रिलीव नहीं होंगे। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रू लेबर पेन की हैं, क्या क्या होती हैं। ट्रू लेबर पेन्स की कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे ये विथ रेगुलर इंटरवल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो कॉन्ट्रैक्शन की है वो इंक्रीज करेगी ग्रेजुअली, जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्शन की वो इंक्रीज करेगी प्रोग्रेसिवली। इट इज एसोसिएटेड विद शो एंड प्रोग्रेसिव फेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स होगा उसके साथ। डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ 4 वाटर्स एंड नॉट रिलीव्ड बाय द एनिमा एंड सेडेटिव्स, ठीक है। फॉल्स लेबर पेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमने ट्रू लेबर पेन की देखी है। अब फॉल्स लेबर पेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डल इन नेचर, ये डल होगा, ठीक है, कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड गोराइन, लोअर एब्डोमेन और गोराइन में ही रहेगा, एंड मे बी एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस हार्ड रहेगा, हार्ड होगा इसमें, ठीक है। दे हैव नो अदर फीचर्स ऑफ द ट्रू लेबर पेन आर एज डिस्कस्ड अबव, अभी जो हमने ट्रू लेबर की फीचर्स देखे थे वो सब नहीं होंगे इसमें। तो फॉल्स लेबर पेन है यूजुअली रिलीव्ड बाय एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक देने के बाद वो ठीक हो जाता है, ठीक है। लेबर पेन की बात करें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ठीक है, लेबर पेन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पेनलेस बैरेक्सटन हिक contraction with simultaneous hardening of the uterus occurs, ठीक है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पेनलेस, कुछ पेनलेस ब्रैक्सटन्स हिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, विथ साइमल्टेनियस हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस अकर्स, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शंस आर, ये ब्रैक्सटन्स हिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, दिस कॉन्ट्रैक्शन आर इरेगुलर एंड डू नॉट इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी, ये कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर होते हैं, ना तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और रेगुलर भी नहीं होते हैं, ठीक है। these contractions changes their character, in contraction जो ब्रैक्सन हिक contraction होते हैं, these change their character, become more powerful and intermittent, are associated with the pain, and the pain more often felt in the front of the abdomen radiating towards the thigh, ठीक है। शो क्या होता है, शो विद द ऑनसेट ऑफ द लेबर, जैसे ही विद द ऑनसेट ऑफ द लेबर स्टार्ट होता है, देयर इज प्रोफ्यूज सर्वाइकल म्यूकॉइड डिस्चार्ज। शो क्या होता है, शो इज विद द ऑनसेट ऑफ द लेबर, जब ऑनसेट लेबर स्टार्ट होता है प्रोफ्यूज सर्वाइकल म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है, सर्वाइकल म्यूकॉइड डिस्चार्ज बहुत सारा होता है साइमल्टेनियसली। देयर इज स्लाइट ओजिंग ऑफ द ब्लड, जिसके साथ थोड़ा सा ब्लड भी निकलता है, फ्रॉम द रप्चर ऑफ द कैपिलरी वेसल्स ऑफ द सर्विक्स एंड फ्रॉम द रॉ डेसिडुअल सरफेस कॉज्ड बाय द सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एक्सपल्जन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस प्लाग मिक्स्ड विद द ब्लड इज कॉल्ड एज शो, ठीक है। तो बेसिकली जो सर्वाइकल म्यूकस प्लाग होता है वो मिक्स होता है विद द ब्लड, इसे हम शो बोलते हैं, ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ द लेबर, डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल ऑस, जो हमारा इंटरनल ऑस होता है, विद द ऑनसेट ऑफ द लेबर when the cervical canal begins to dilate more in the upper part than in the lower, the former being accompanied by corresponding stretching of the lower uterine segment, formation of the bag of waters, that is bag of waters का formation का क्या मतलब है, this is the due to stretching of the lower uterine segment, जो चूंकि जो lower uterine segment है वो basically stretch हो रहा है, the membranes are detached easily because of the loose attachment टू द पुअरली फॉर्म डेसिडुआ, ठीक है। जो बेसिकली आपका लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारे यूटरस हो गया, ठीक है।
इसका जो लोअर यूट्राइन से ये जैसे सर्विक्स का पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट है ये पूरा, ठीक है, इसमें जो हमारा इसका स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है, द मेम्ब्रेन्स आर डी अटैच इजीली बिकॉज द लूज अटैचमेंट, मेम्ब्रेन्स का लूज अटैचमेंट होता है टू पुअरली फॉर्म डेसिडुआ, डेसिडुआ पे जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं इनका लूज अटैचमेंट होता है। विद द डायलिटेशन ऑफ द सर्वाइकल कैनाल लोअर पोल ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन बिकम अनसपोर्टेड एंड टेंड्स टू बल्ज इनटू द सर्वाइकल कैनाल। तो जो हमारी सर्वाइकल कैनाल जैसे होती है, जो लोअर पोल होता है वो बेसिकली बल्ज करने लगता है सर्वाइकल कैनाल में मेम्ब्रेन्स का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बैग ऑफ वाटर, ठीक है। इस यही कहने का मतलब इनका। विद द डायलिटेशन ऑफ द सर्वाइकल कैनाल लोअर पोल ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन बिकम unsupported and tends to bulge in the cervical canal as it contains liquor which has passed below the presenting part. It is called as bag of water। इसी को हम basically bag of waters बोलते हैं, ठीक है। During the uterine contraction with the consequent rise in the intra-amniotic pressure, this bag becomes tense and convex, ठीक है। uterine contraction के टाइम पे with the consequent rise in the intra-amniotic pressure जैसे जैसे बढ़ता है ये बैग आपका टेंस होता जाता है और कन्वेक्स होता जाता है। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन पास ऑफ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन पास ऑफ करता है एंड द बल्जिंग डिसअपियर्स कंप्लीटली, और बल्जिंग जो है पूरी डिसअपियर कर जाती है। इन दिस एसोसिएशन विद द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द सर्वाइकल regular contraction and the cervical changes are the signs of the onset of the labor. However, in some cases the membranes are so well applied to the head that the finding may not be detected. Stages of the labor से अगर बात करें तो labor की basically main 3 stages हैं, ठीक है। That is first stage, it is start from the onset of the true labor pain, ends with the full dilatation of the cervix. It is in the other words that is cervical stage of the labor, and its average duration is 12 hour in the primary gravida and 6 hour in the multipara. This is of prime importance for the students that you should focus on the first stage. Duration is major times asked from the examiners that the onset of the true labor pain ये कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ट्रू लेबर पेन की ऑनसेट के बाद से लेके एंड विद द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स जब तक फुल डायलेट नहीं हो जाती तब तक की ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द सर्वाइकल स्टेज ऑफ द लेबर इसे बोलते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन जो होती है 12 घंटे होती है फर्स्ट स्टेज की प्राइमरी ग्रेविडा में और 6 घंटे रहती है मल्टीपैरा में, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आपकी सेकेंड स्टेज होती है स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स नॉट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ends with the expulsion of the fetus from the birth canal. It has got 2 phases, that is a propulsive or the passive phase start from full dilatation up to the descent of the presenting part of the pelvic presenting part to the pelvic floor, and the expulsive or the active phase is distinguished by maternal bearing down effort and end with the delivery of the baby. Its duration is about 2 hours in the primary gravida and 30 minutes in the multipara. So the second stage, what is second stage? फुल डायलिटेशन से लेके इन फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स नॉट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ends with the expulsion of the fetus, expulsion of the fetus तक आपकी सेकंड स्टेज। ये आपका ग्रॉस में अगर समझना है फुल डायलिटेशन हुआ, फुल डायलिटेशन लेबर पेन स्टार्ट होने से फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स तक की आपकी फर्स्ट स्टेज है। फुल डायलिटेशन से लेके एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आपकी सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा प्रोपल्सिव फेज होती है, प्रोपल्सिव या फिर पैसिव फेज जिसे बोलते हैं, वो आपका फुल डायलिटेशन से स्टार्ट होती है अप टू descent of the presenting part to the pelvic floor। जब तक कि जो presenting part है that is head जो है fetus का, जब तक कि pelvic floor तक नहीं आ जाता है उसे हम बोलते हैं descent के टाइम का, इसे propulsive phase बोलते हैं। फिर होती है एक expulsive phase। expulsive या फिर active phase is distinguished by the maternal bearing down effort। ये maternal bearing down efforts पे डिपेंड करती है and ends with the delivery of the baby। जब डिलीवरी हो जाती है बेबी की उस पर एंड करती है। एवरेज ड्यूरेशन इसकी जो होती है वो 2 घंटे की होती है इन द प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा में 2 घंटे की होती है और 30 मिनट का ड्यूरेशन होता है सिर्फ इन द मल्टीपैरा, ठीक है। द थर्ड स्टेज जो
तीसरी स्टेज होती है, इट बिगिंस आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस एंड एंड्स विद द एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा इन द मेम्ब्रेन, दैट इज आफ्टर बर्थ. Its average duration is about 15 minutes in both the primary gravida and the multipara. एवरेज ड्यूरेशन जो थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर की होती है, जो कि थर्ड स्टेज जो होती है वो एक्सपल्जन के बाद से शुरू होती है ऑफ द फीटस एंड एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा मेम्ब्रेन, प्लासेंटा इन द मेम्ब्रेन एंड हो जाती है. ठीक है, मतलब बच्चा निकल गया है, फीटस निकल गया है, एक्सपल्जन फीटस का एक्सपल्जन होने के बाद से लेके मेम्ब्रेन्स और प्लासेंटा के एक्सट्रैक्शन तक की आपकी थर्ड स्टेज होती है. एवरेज ड्यूरेशन जो इसकी होती है वो 15 मिनट की होती है. ठीक है, ये 15 मिनट प्राइमरी और मेल्टी दोनों में होती है. द ड्यूरेशन इज हाउएवर रिड्यूस टू 5 मिनट्स इन एक्टिव मैनेजमेंट. एक्टिव मैनेजमेंट अगर हम करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर का, तो हम 5 मिनट की ड्यूरेशन में उसको हम लेके आएंगे. 15 मिनट की नॉर्मली होती है, 5 मिनट में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर होता है. ठीक है, मेम्ब्रेन वगैरह सारी बाहर आ जाएंगी. ठीक है, द फोर्थ स्टेज जो होती है दैट इज स्टेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर. 1 घंटे की हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, इसे हम फोर्थ स्टेज कहते हैं. आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ द आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मैटरनल वाइटल्स एंड द यूट्राइन retraction and any vaginal bleeding are monitored. Baby is examined. These are done to ensure both the mother and the baby are वेल. इसको इंश्योर करने के लिए हम बेसिकली 1 घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड जो रखते हैं उसे हम फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर बोलते हैं. Now talking about the physiology of the normal labor. During pregnancy there is marked hypertrophy and hyperplasia of the uterine muscle. जो आपके यूट्राइन मसल्स हैं, यूट्राइन मस्कुलेचर है, उसकी हाइपरट्रॉफी होती है और हाइपरप्लेजिया होता है. एंड द एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस होता है. एट द टर्म द लेंथ ऑफ द यूट्रस मेजर्स अबाउट 35 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग द सर्विक्स. जो आपका यूट्रस होता है वो मेजर करता है अराउंड 35 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग द cervix at the term. ठीक है, the fundus is wider both transversely and anterior posteriorly than the lower segment. फंडस बहुत ज़्यादा वाइडर हो जाता है. ठीक है, द यूट्रस जो होता है वो अज्यूम कर लेता है एक पायरीफॉर्म शेप. ठीक है, और द ओवॉइड शेप. सर्वाइकल कैनाल इज ऑक्लूडेड बाय द थिक टेनेशियस एंड म्यूकस प्लग. द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन द लेबर throughout the pregnancy, irregular involuntary spasmodic uterine contraction which are painless, that is Braxton Hicks contractions, and have no effect on the dilatation of the cervix. ठीक है, the character of the contraction changes with the onset of the labor का onset होने से character change हो जाते हैं इन contractions के. ठीक है, the pacemaker of the uterine contraction is situated in the region of the tubal ostia. जहाँ पे tubal ostia होती है वहीं पे इसका pacemaker situated होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का. from where the wave of the contraction is spread downward. While there are wide variation in the frequency, intensity and the duration of the contraction, they remain usually within normal limits in the following pattern. That is, there is good synchronization of the contraction wave from both the halves of the uterus and also between the upper and the lower uterine segment. There is a fundal dominance of the contraction that diminish gradually in the duration and the intensity through the mid zone down to the lower segment. It takes about 10 to 20 seconds. The wave of the contraction follow a regular pattern. The upper segment of the uterus contracts more strongly for the longer time than the lower part, and the intra-amniotic pressure rises beyond 20 mmHg during the uterine contraction. Good relaxation occurs in between the contraction to bring down the intra-amniotic pressure to less than 8 mmHg. Contraction of the fundus lasts longer than that of the mid zone. During the contraction the uterus becomes hard and somewhat pushed anteriorly. जो यूट्रस है बेसिकली वो हार्ड हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे और वो एंटीरियरली पुश हो जाता है टू मेक द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द यूट्रस इन द लाइन विद दैट ऑफ द पेल्विक एक्सेस. जो लॉन्ग एक्सेस ऑफ द यूट्रस होती है वो पेल्विक एक्सेस की लाइन में आ जाती है एंटीरियरली पुश होने की वजह से. साइमल्टेनियसली द पेशेंट एक्सपीरियंसेस पेन which is situated more on the hypogastric region, often radiating to the thighs. Probably the cause of the pain are myocardial hypoxia during the contraction as in the angina, stretching of the peritoneum over the fundus and stretching of the cervix
cervix during the dilatation and stretching of the ligaments surrounding the uterus and compression of the nerves and ganglion. The pain of the uterine contraction is distributed along the cutaneous nerve distribution of T10 to L1. Pain of the cervical dilatation and the stretching is referred to the back through the sacral plexus. टोनस क्या होता है? इट इज इंट्रायूट्राइन प्रेशर in between the contraction. Tonus is the intrauterine pressure in between the contraction during the pregnancy as the uterus is quiescent, that is inactive होता है during the pregnancy. As the uterus is inactive quiescent, the tonus of 2 to 3 mmHg during the first stage of the labor. It varies from 8 to 10 mmHg inversely proportional to the relaxation. The factor which governs the tonus are contractility of the uterine muscle, intra-abdominal pressure, and the overt distension of the uterus in the twin and the hydramnios. Intensity of the uterine contraction describes degree of the uterine systole. The intensity gradually increases with the advancement of the labor until it becomes maximum. In the second stage of the delivery of the baby, the intrauterine pressure raised to 40 to 50 mmHg during the first stage and about 100 to 120 mmHg in the second stage of the labor during the contraction. In spite diminished pain in the third stage, the intrauterine pressure is probably the same as that of the second stage. The diminished pain is due to the lack of the stretching effect. Duration: in the first stage, the contraction lasts for about 30 seconds initially but gradually increased in the duration with the progress of the labor. Thus, in the second stage, the contraction lasts longer than the first stage. Frequency: in the early stage of the labor, the contraction comes at an interval of 10 to 15 minutes. The intervals gradually shortens with the advancement of the labor until the second stage, when it comes every 2 to 3 minutes. It is important to note all the features of the uterine contraction. सारे features जो uterine contraction के mentioned are effective only when they are in combination. ठीक है. Retraction क्या होता है? It is the phenomena. Retraction is basically the phenomena of uterus in the labor in which the muscle fibers are permanently shortened. Muscle fiber permanently shortened हो गए हैं. ठीक है. Phenomena of the uterus in the labor, muscle fibers are permanently shortened. Unlike the other muscles of the body, the uterine muscles have this property to become shortened once and for all. Contraction is temporary reduction in the length of the fibers which attains their full length during the relaxation. In contrast, retraction results in the permanent shortening and the nerve fibers are shortened once and for all. The net effect of the retraction in the normal labor. अगर retraction हो जाता है, net effect क्या रहता है तुम्हारा normal labor? That is essential property in the formation of the lower uterine segment and the dilatation and effacement of the cervix. To maintain the descent of the presenting part made by the uterine contraction and to help you ultimate expulsion of the fetus. To reduce the surface area of the uterus reduce करने के लिए favoring the separation of the placenta, effective hemostasis after the separation of the placenta. Now we come to the events in the first stage of the labor, which we will do in the next part.